This question is related to machine hour rate. Whenever we talk about machine hour rate, always remember that we have to divide the charges into two parts. The first type of charge will be a standing charge and the second type of charge will be a running charge. What is a standing charge? A standing charge is very simple. When the machine is in a standing position, it is not running, then also there are some charges which are incurred. That charges are called as standing charges. Whereas when the machine is running, the charges which are incurred, they are called as running charges. Normally, standing charges we calculate per annum basis, and whereas running charges we calculate per hour basis. समझ में आ रहा है क्या? So first I will write here A, that is standing charges, and here I will write running charges. Is this clear? B, running charges. Okay? Sure. Let us read the question first. Question is written on the board. Okay? The cost of the machine is 1 lakh and the life is 10 years and the scrap value is 10,000. Why is this information given? The cost, the scrap value and the number of years. It is given to calculate depreciation. It is given to calculate depreciation. You have to understand that depreciation is a running charge. The more the machine runs, the more it will be depreciated. समझ में आ रहा है? So depreciation is a running charge. So I will write first running charge is depreciation. Now for depreciation, I will write a working note. I will write refer working note number 1. Calculation of depreciation. Formula of depreciation is equal to cost minus scrap value upon number of years. Is this clear? What is the cost of the machine? 1 lakh minus what is the scrap value of the machine? 10,000. Very good. What are the number of years it is used? 10 years. So answer will be 9,000 per annum is the depreciation. But we are not supposed to calculate depreciation per annum basis. We have to calculate per hour basis. कि भाई 1 घंटे का depreciation कितना, उसके लिए we have to check कि वो मशीन कितने घंटे चली है. Time, that is the effective time. तो effective time calculate करने के लिए point number 2 is given that the working time is 50 weeks of 44 hours each. 44 hours each. 50 हफ्ते मशीन काम करती है और एक हफ्ते में 44 hours चलती है. That means total number of hours. 22. Yes, total hours will be 50 into 44. That is 2200 will be total hours. Is this clear? In that 2200, this 2200 hours is including what? There are two things which are included in it. The first thing is the maintenance time, 200 hours, and the second is the setting up time, that is 100 hours. Is this clear? Is this clear? Maintenance is understood to be an unproductive hour. मतलब productive hours में calculate नहीं किया जाएगा उसको. That means 2200 में से I will subtract maintenance, that is 200. So the effective hours will be 2000 hours. Hope this is clear. The effective hours, मशीन 2000 घंटे चलती है ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं. उसमें 100 घंटे उसको सेटअप करने के लिए जाता है, बट सेटअप करने के लिए तो जाएगा ही. समझ में आ रहा है ना? तो that hours are to be included and it is also written here, they are productive hours. Setup time is productive hours. समझ में आ रहा है? तो 2200 minus 200 is 2000. So depreciation 9000 per annum. तो 2000 घंटे के लिए कितना? मतलब 1 घंटे के लिए कितना? That is depreciation per hour is 9000 divided by 2000, that is equal to 4.5 per hour. Hope this is clear. So depreciation is 4.5 per hour. I got the answer. Here. Next,
So this is over. So this is also over, suppose. Next is talking about power. Power में दिया हुआ है that the machine requires 16 units per hour. एक घंटे में मशीन को 16 यूनिट लगता है. एक घंटे में मशीन को 16 यूनिट लगता है. अरे बराबर ना. और the rate is 9 पैसे पर यूनिट. मतलब एक यूनिट का 9 पैसे. इसका मतलब I will write power will be 16 यूनिट्स. बराबर ना. एक घंटे में 16 यूनिट्स लगता है. और रेट जो है, सपोज एमएससीबी जो रेट लेती है हमारे से, वो लेती है कितना पैसा ले रही है? 9 पैसे. 9 पैसे इज नथिंग बट 0.09. इट इज नॉट 0.9, इट इज 0.09. दैट मीन्स हमारी मशीन एक घंटे में 1.44 रुपीस का पावर कंज्यूम करती है. अरे बराबर है. बट ये 1.44 जो है, इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी आवर्स? 2000 आवर्स. 2000 घंटे के लिए इक्विवेलेंट है. लेकिन याद रखना, जब मशीन को सेटअप करते हैं तो पावर यूज होता है क्या? नहीं यूज होता है. ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था. एक समय ऐसा देखा था जिसके अंदर आई थिंक 4 रुपए आया था. दैट 4 रुपीज वर इक्विवेलेंट टू 2000 आवर्स. तो मैंने निकाला था 1800 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एट गॉट 3.6. सेम लॉजिक अप्लाइज हियर कि ये जो 1.44 है ये 2000 घंटे के हिसाब से है. बट हमारी मशीन 2000 घंटे के लिए पावर नहीं यूज करती है, 1900 घंटे के लिए. सो फॉर 2000 यूनिट्स it is 1.44. So for 1900 it is how much? So 1.44 into 1900 divided by 2000 is equal to 1.368. Round figure. 1.368 is power. I will write second working note, that is of power. Working note number 2. It is 1.368. Hope this is clear. क्लियर है क्या? एंड मान लो सबसे डिफिकल्ट चीज एमएचआर में, इट इज कैलकुलेशन ऑफ पावर एंड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. बाकी सब इजी रहता है. खाली यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. और अभी तुम्हारे पास वीडियो है, तो मेरे हिसाब से एग्जाम के पहले वीडियो देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने 1.44 निकाला, फिर 2000 के लिए 1.44, तो 1900 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड आई गॉट 1.368. ओके, आगे चलते हैं. सो पावर इज आल्सो ओवर. नेक्स्ट इज मशीन रिक्वायर्स अ केमिकल सॉल्यूशन व्हिच इज रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 ईच टाइम. मतलब मशीन को एक केमिकल लगता है. तुमको क्या लगता है केमिकल का जो चार्ज है वो स्टैंडिंग चार्ज है कि रनिंग चार्ज है? रनिंग. मतलब जितना ज्यादा मशीन चलेगी उतना ज्यादा केमिकल लगेगा. कि मशीन चलेगी रुकेगी तो भी केमिकल डालना पड़ेगा. रनिंग के स्टैंडिंग. सी ऑलवेज रिमेंबर दैट द लुब्रिकेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द मशीन, समझ में आ रहा है क्या? वो रनिंग चार्ज में आएगा. समझ में आ रहा है? ज्यादा रनिंग होएगा तो ज्यादा केमिकल डालना पड़ेगा, रनिंग नहीं होएगा तो केमिकल नहीं डालना पड़ेगा. लॉजिक ये है. ये लॉजिक से हम लोग चलते हैं. और यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन रिक्वायर्स अ केमिकल सॉल्यूशन व्हिच इज रिलेटेड एट द एंड ऑफ ईच वीक. सो मैं लिख देता हूँ केमिकल. पॉइंट नंबर 3 इधर लिखता हूँ केमिकल लगता है. केमिकल सॉल्यूशन. अब केमिकल सॉल्यूशन का कॉस्ट कितना है? एक हफ्ते में, हर एक हफ्ते के एंड में डालना पड़ता है. मतलब 20 रुपए का केमिकल जो हर हफ्ते के एंड में डालना पड़ता है. मशीन पूरी लाइफ में कितने घंटे चलती है? मतलब साल में कितने घंटे चलती है? 50 हफ्ते चलती है. 50 हफ्ते चलती है. इसका मतलब 50 हफ्ते 20-20 रुपए का केमिकल लगेगा. एक हफ्ते का 20 रुपया, 50 हफ्ते का कितना? समझ में आ रहा है ना? तो एक हफ्ते का 20 रुपया, तो 50 हफ्ते का कितना? 1000. लेकिन ये 1000 तो पूरे साल का चार्ज है. हमें पर आर निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 2000. सो आंसर विल बी
0.5. होप दिस इज क्लियर. केमिकल भी क्लियर हो गया. 20 रुपया हर हफ्ते लगता है. 50 हफ्ते के लिए 1000 रुपए का लगेगा केमिकल. 1 घंटे का कितना? डिवाइड बाय 2000. क्लियर है? आगे चलते हैं. कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज 1200 पर एनम. मेंटेनेंस, वापस से एक बार, मेंटेनेंस, repairs, depreciation, power, these are all running charges. So I will write point number 4, maintenance. बोलो कितना? 1200 पर एनम. तो कितने? 0.6. नेक्स्ट नंबर 5, जनरल ओवरहेड्स. ये भी हो गया. जनरल ओवरहेड्स. इज जनरल ओवरहेड अ स्टैंडिंग चार्ज और अ रनिंग चार्ज? स्टैंडिंग चार्ज. जनरल ओवरहेड्स. हाउ मच? 2000 per annum. Okay, so this is also done. Next, a supervisor oversees the operation of this machine. वो देखता है ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट मशीन देखता है, and 5 other identical machines, and his salary weekly is 120 each. हर हफ्ते का सैलरी 120 रुपए है. कितनी मशीन देखता है? 6. ये तो मशीन देखता है, और इसके जैसी और 5 आइडेंटिकल मशीन देखता है. आइडेंटिकल जानबूझ के दिया है कि सेम है ना, डिवाइड बाय 6 कर दो तो एक मशीन का मालूम पड़ जाएगा. 6 मशीन का खर्चा मालूम पड़ेगा. एक मशीन का फाइंड करने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय 6. तो उसका पगार जो है वो 120 हफ्ते का है. एक हफ्ते का 120 है. तो आई विल राइट सेकंड, सुपरवाइजर सैलरी दैट इज 120 हर हफ्ते का है. तो 50 हफ्ते का कितना? 6000. लेकिन वो एक मशीन का कितना? 1000. 6000 रुपया 6 मशीन का. तो एक मशीन का ही निकाल रहे हैं ना हम लोग. तो एक मशीन का 1000. दैट मीन्स हो गया सम खत्म. दैट मीन्स टोटल स्टैंडिंग चार्ज इज 3000 पर एनम. वी आर सपोज टू फाइंड स्टैंडिंग चार्ज पर आवर. तो मैं लिखूंगा स्टैंडिंग चार्ज पर आवर इज 3000 डिवाइडेड बाय 2000. दैट इज इक्वल टू 1.5. ये 1.5, ये 4.5, ये 1.368, ये 0.5, ये 0.6. तो अपने को मिलेगा मशीन आर रेट 8.468 rupees. Is this clear?